طائف کا سفر ہر سیاح کے لیے یادگار تجربہ ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سعودی عرب کے دیگر شہروں سے روانہ ہوتے ہیں۔ طائف اپنے پہاڑوں، سرسبز وادیوں، خوشبودار پھولوں اور معتدل موسم کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ شہر تاریخی، ثقافتی اور قدرتی خوبصورتی کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ روانگی کا آغاز۔ سفر کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی اب طائف کی جانب روانہ ہوتے ہیں، راستے میں پہاڑوں کی لمبی قطاریں، سبز وادیوں کی خوبصورتی اور کھیتوں کے درمیان چلتی ہوئی سڑکیں اب کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے لوگ کھڑکی کے باہر دیکھتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان گزرنے والے چھوٹے گاؤں اور ندیوں کے نظارے دل کو سکون دیتے ہیں۔ سفر کے دوران خاص طور پر موسم بہار اور خزاں میں ہوا میں تازگی اور خوشبو ہوتی ہے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ چائے کے اسٹالز ہوتے ہیں، جہاں لوگ آرام کر کے چائے کھانے کا لطف اٹھاتے ہیں۔ بچے کھڑکی سے باہر دیکھ کر ہر نئے منظر پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ راستے کے مناظر۔ طائف کا راستہ قدرتی حسن سے بھرپور ہے۔ پہاڑوں کے بلند سلسلے، دھاٹیوں میں بہتی ندیوں کی کھنڈی ہوا اور درختوں کی ہریالی ایک الگ ہی خوشبو اور سکون دیتے ہیں۔ راستے میں مقامی لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو مقامی دستکاری پھل خریدنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ سفر کے دوران قافلے گاڑی میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ماضی کے تجربات طائف کے بارے میں سناتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ نئے لوگوں سے دوستیاں بناتے ہیں۔ اس ماحول میں خوشی اور سکون کی فضا قائم رہتی ہے۔ پہاڑوں کی چڑھائی۔ طائف کے راستے میں سب سے زیادہ دلچسپ اور یادگار مرحلہ پہاڑوں کی چڑھائی ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے، بلکہ ان کی چڑھائی بھی سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ تجربہ فراہم کرتی ہے۔ گاڑی پیدل راستے پر سفر کرتے ہوئے پہاڑوں کی بلندیاں اور گھاٹیوں کی گہرائیاں آپ کے سفر کو یادگار بناتی ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے کے دوران آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ قدرت کے سینے میں سفر کر رہے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے دیکھنے پر سبز وادی، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور گھاٹیوں میں بہتی ندیوں کا منظر نظر آتا ہے۔ یہ لمحات دل کو سکون اور روح کو تازگی دیتے ہیں۔ پہلی جھلکی۔ شہر کے قریب پہنچتے ہی طائف کی پہلی جھلک نظر آتی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان یہ شہر سرسبز اور شاداب ماحول میں واقع ہے۔ یہاں کے باغات اور قدرتی مناظر دیکھ کر ہر سیاح دنگ رہ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندرونی حصے میں عمارتیں تاریخی اور جدید دونوں طرز کی ہیں، جو شہر کی قدیم تاریخ اور ترقی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ طائف کی فضا میں ایک خوشگوار سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہر طرف سبزہ، پھول اور ٹھنڈی ہوا آپ کے دل کو راحت دیتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور دوستانہ رویہ بھی سفر کو مزید خوشگوار بناتا ہے۔ سفر کی دلچسپیاں۔ طائف کا پہلا حصہ یعنی مکہ سے شہر تک کا سفر نہ صرف راستے کے مناظر کی وجہ سے یادگار ہے، بلکہ یہ وقت سیاحوں کو آرام کرنے، تصاویر لینے اور شہر کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے مقامی بازار، پھلوں کے باغات اور تاریخی مقامات نظر آتے ہیں، جو سفر کو مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ سیاح اکثر گاڑی قافلے میں بیٹھ کر کہانیاں سنتے ہیں، موسیقی سن کر لطف اٹھاتے ہیں اور راستے کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کبھی کبھار رک کر نیچے شہر اور وادیوں کا منظر لیا جاتا ہے، جو دل کو بے حد خوشی اور سکون دیتا ہے۔ خلاصہ۔ حصہ ایک میں ہم نے دیکھا کہ طائف کا سفر مکہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہاڑوں اور وادیوں کے حسین مناظر، راستے کے بازار اور چھوٹے اسٹالز، اور شہر کے قریب پہنچنے پر پہلی جھلک کیسی ہوتی ہے۔ یہ حصہ سیاح کے لیے دلچسپی اور خوشی کا سبب بنتا ہے، اور اگلے حصے میں شہر کے اندر داخلہ، تاریخی مقامات اور مقامی زندگی کے دلچسپ پہلو بیان کیے جائیں گے۔ طائف کا یہ پہلا حصہ صرف راستے کے مناظر اور ابتدائی تجربات کا ہے، جو ہر سیاح کے لیے یادگار اور دلکش ہوتا ہے۔ طائف کا شہر، جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ اس کے تاریخی اور ثقافتی مقامات بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو جدید عمارتیں اور قدیم طرز کی چھوٹی چھوٹی عمارتیں دونوں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ یہ شہر ماضی اور حال کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ شہر میں داخلے کا منظر۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت راستے دکھائی دیتے ہیں۔
सड़कों के किनारे फूलों की कितारें, छोटे छोटे स्टॉल्स और मकामी बाजार आपकी तवज्जो खींचते हैं। हर तरफ खुशबू और रंगीनी का इम्तिजाज देखने को मिलता है। ताइफ की फ़ज़ा में ख़ास तौर पर सुबह और शाम के वक्त एक खुशगवार ठंडक और ताजगी महसूस होती है। यहाँ के लोग निहायत खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं। अब अगर किसी से रास्ता पूछे या किसी दुकान से चीज़ खरीदे तो आपको मुस्कुराते हुए जवाब मिलता है, जो सफ़र के मज़े को और बढ़ा देता है। तारीख़ी मकामात की दरियाफ्त। ताइफ का सफ़र सिर्फ कुदरती हसन के लिए नहीं बल्कि तारीख़ और सकाफ़त के लिए भी अहम है। शहर में कई तारीख़ी मकामात और यादगारें मौजूद हैं जो ताइफ की पुरानी तारीख़ और लोगों की ज़िंदगी की कहानी बयान करती हैं। सैयाह अक्सर सबसे पहले शिफा पहाड़ की सैर करते हैं, जो न सिर्फ कुदरती हसन के लिए मशहूर है बल्कि इसकी तारीख़ी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से ताइफ का पूरा मंजर देखा जा सकता है। एक और दिलचस्प मकाम अल्लनखेल के बागात हैं, जहाँ आप मुख्तलिफ फलों, सब्जियों और खुशबूदार फूलों को देख सकते हैं। ये बागात शहर के शोर और मसरूफियत से दूर एक पुरसुकून माहौल फराहम करते हैं। यहाँ लोग आराम करते हैं, तस्वीरें लेते हैं और कुदरत के मनाजिर का लुत्फ उठाते हैं। मकामी बाजार और सकाफत। ताइफ के बाजार भी इस शहर की दिलकशी में इजाफा करते हैं। यहाँ आपको खुशबूदार फूल, शहद, मसाले और मकामी हुनर के दस्तकारी के सामान खरीदने को मिलते हैं। बाजारों में चलते हुए आप मकामी लोगों की बातचीत, रवायात और सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। बाजार में हर दुकान का अपना खास अंदाज और खुशबू होती है। फूलों की दुकानों से ताज़ा खुशबू आती है, मसाला जात की दुकानों से खुशबूदार धुआं और खुशबू, और दस्तकारी की दुकानों में मकामी हुनर की नुमाइश देखकर हर सैयाह हैरान रह जाता है। शहर की पहचान, मसाजिद और यादगारें। ताइफ में कई कदीम मसाजिद और यादगारें मौजूद हैं जो शहर की रूहानी और तारीखी अहमियत को जाहिर करती हैं। शहर के मरकज़ में वाक़े कदीम मसाजिद और छोटी यादगारें आपको माजी की याद दिलाती हैं। ये मकामात न सिर्फ सियाहती दिलचस्पी का बाइस हैं बल्कि ताइफ की सकाफ़त और तारीख़ के बारे में मालूमात भी फराहम करते हैं। सैयाह अक्सर उन मकामात पर जाकर तारीख़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के रिहायशी भी खुश दिली से तारीख़ के हक़ाइक़ और किस्से सुनाते हैं जो सफ़र को दिलचस्प और यादगार बनाते हैं। पहाड़ों और शहर का इम्तिजाज। ताइफ का मुनफरिद हसन इसमें है कि ये शहर कुदरती पहाड़ों के दरमियान वाक़े है। शहर के अंदर कदम रखते ही आपको पहाड़ों की बुलंदियां और सब्ज़ाज़ार देखने को मिलते हैं जो आपको कुदरत के करीब ले जाते हैं। रात के वक्त शहर की रोशनी और पहाड़ों का मंजर नाकाबिल फरामोश होता है। लोग अक्सर रात को पहाड़ों की चोटियों पर जाकर शहर की रोशनियों और फिज़ा का मुशाहिदा करते हैं। ये लम्हे दिल को खुशी और रूह को ताजगी देते हैं। मकामी सकाफत और लोगों का रवैया। ताइफ के लोगों की मेहमान नवाजी भी सफ़र के दिलचस्प पहलू में शामिल है। शहर में दाखिल होते ही आपको हर जगह खुश अखलाक और दोस्ताना लोग मिलेंगे जो सयाहों की रहनुमाई और मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शहर के अंदर मकामी खाने, मशरूबात और सकाफती तकरीबात देखने को मिलती हैं। कुछ मकामी त्यौहार और तकरीबें भी ताइफ के सफ़र में दिलचस्पी का इजाफा करती हैं, जैसे फूलों के त्यौहार आ मकामी मूसीकी की महाफिल। कुदरती हसन की दरियाफ्त। ताइफ अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। पहाड़, वादियाँ, सब्ज़ाज़ार और पानी के चश्मे दिल को खुशी और रूह को सुकून देते हैं। सैयाह अक्सर पैदल या गाड़ी के जरिए पहाड़ों की सैर करते हैं। रास्ते में दरख्तों, फूलों और नदियों की मौजूदगी कुदरत के हसन को और बढ़ा देती है। पहाड़ों के दरमियान से गुजरना, नीचे वादियों में बहती नदियों को देखना और पहाड़ों की चोटियों से ताइफ के शहर का मंजर देखना एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा होता है। ये लम्हे दिल को ताजगी और रूह को सुकून देते हैं। मशहूर बागात और पार्क्स। ताइफ में कई मशहूर बागात और पार्क्स हैं जहां सैयाह आराम कर सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं और कुदरती माहौल में वक्त गुजार सकते हैं। सबसे मशहूर बागात में शामिल हैं अल्लनखेल बागात। ये बागात न सिर्फ खूबसूरत फूलों और सब्जियों के लिए मशहूर हैं बल्कि यहाँ के पुरसुकून माहौल की वजह से लोग यहाँ आकर ज़हनी सुकून हासिल करते हैं। शाही बागात। शहर के वस्त में वाक़े ये बागात तफरी और चहल कदमी के लिए बेहतरीन हैं। यहाँ के दरख्त, फूल और छोटे छोटे फवारे सयाहों की तवज्जो खींचते हैं। हदाइक अल्ताइफ। ये बागात बच्चों और बड़ों दोनों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं।
यहाँ खेल के मैदान, बैठने की जगहें और छोटे झूले मौजूद हैं। बागात में वक्त गुजारना, खुशबूदार फूलों को देखना और तस्वीरें लेना सफर को यादगार बना देता है। पानी के चश्मे और नदी किनारे। ताइफ की वादियों में छोटे छोटे चश्मे और नदी किनारे भी सयाहों के लिए दिलचस्प तजुर्बा फराहम करते हैं। नदी किनारे बैठकर पानी की आवाज़ सुनना, ताज़ा हवा में वक्त गुजारना और फितरत के करीब होना रूह को सुकून देता है। ये मकामात न सिर्फ कुदरती हसन के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहाँ के माहौल में लोगों की खुश मिजाजी और मेहमान नवाजी भी देखने को मिलती है। सयाह अक्सर यहाँ पिकनिक, तस्वीरें और आराम के लिए आते हैं। पहाड़ों की सैर और मुहिम जोई। ताइफ के पहाड़ सयाहों को मुहिम जोई और दिलचस्प तजुर्बात फराहम करते हैं। बाज़ सयाह पैदल या केबल कार के जरिए पहाड़ों की चोटी तक जाते हैं। चोटी से शहर और वादियों का मंजर दिलकश और नाकाबिल फरामोश होता है। चलाई के दौरान अब कुदरत के मुख्तलिफ रंग, दरख्तों की छाँव और हवा की ठंडक महसूस करते हैं। ये तजुर्बा न सिर्फ जिस्मानी तौर पर दिलचस्प है, बल्कि रूहानी तौर पर भी ताजगी बख्शता है। मकामी तफरी और सकाफत। ताइफ के कुदरती मनाजिर के साथ साथ मकामी सकाफत और तफरी भी सयाह को बहुत दिलचस्प लगती है। शहर में कुछ मकामी त्यौहार और तकरीबें भी मुनक्किद होती हैं, जैसे फूलों के त्यौहार और मकामी मौसीकी की महाफिल। सयाह अक्सर मकामी लोगों के साथ शामिल होते हैं, उनके खाने, मौसीकी और रवायात का लुत्फ उठाते हैं। ये तजुर्बा सफ़र को यादगार और खुशगवार बनाता है। रात के मनाजिर। रात के वक्त ताइफ के पहाड़ों और बागात का मंजर और भी दिलकश हो जाता है। शहर की रोशनी, पहाड़ों की गहराई और हवाओं का खुशगवार माहौल सयाह के लिए नाकाबिल फरामोश लम्हात फराहम करता है। कुछ सयाह रात को पहाड़ों की चोटी पर चढ़कर शहर की रोशनियों का मुशाहिदा करते हैं। ये लम्हे न सिर्फ दिल को खुशी देते हैं, बल्कि रूह को सुकून और ज़हन को ताजगी फराहम करते हैं। खुलासा। हिस्सा 3 में हमने देखा ताइफ के कुदरती मनाजिर की खूबसूरती, मशहूर बागात और पार्क्स, पानी के चश्मे और नदी किनारे, पहाड़ों की सैर और मुहिम जोई, मकामी सकाफत और रात के मनाजिर। ताइफ में दाखिल होते ही सयाह को मुख्तलिफ तारीखी और सकाफती मकामात नजर आते हैं, जो शहर की पुरानी तारीख और अहमियत को जाहिर करते हैं। 1. शिफा पहाड़। शिफा पहाड़ ताइफ का एक मशहूर और तारीखी मकाम है। ये पहाड़ अपनी खूबसूरती और पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ से ताइफ का पूरा शहर देखा जा सकता है और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर सयाह कुदरत के हुसैन मनाजिर का लुत्फ उठाते हैं। 2. अल्लनखेल के बागात। ये बागात ताइफ के मशहूर बागात में शामिल हैं। यहाँ न सिर्फ फूलों और सब्जियों की खूबसूरती है, बल्कि मकामी सकाफत के रंग भी नुमायां हैं। लोग यहाँ चहलकदमी करते हैं, तस्वीर लेते हैं और कुदरत के करीब वक्त गुजारते हैं। 3. कदीम मसाजिद और यादगारें। ताइफ में कई कदीम मसाजिद मौजूद हैं, जो शहर की रूहानी और तारीखी अहमियत को जाहिर करती हैं। कदीम मसाजिद के अंदर इबादत, सुकून और रूहानियत का हुसैन इम्तिजाज मिलता है। यहाँ के लोग भी खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं और सयाहों को तारीख और सकाफत के बारे में बताते हैं। बाजार और मकामी जिंदगी। ताइफ के मशहूर बाजार सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। यहाँ आपको हर चीज़ दस्तयाब होती है। खुशबूदार फूल। ताइफ के फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। मिठाइयाँ और शहद। मकामी बाजार में ताज़ा शहद और मकामी मिठाइयाँ खरीदने का बेहतरीन मौका मिलता है। मसाले और हुनर की चीज़ें। बाजार में मुख्तलिफ मसाले, दस्तकारी के सामान और यादगार अशिया दस्तयाब होती हैं। बाजार में घूमना न सिर्फ खरीदारी का मौका है, बल्कि यहाँ की सकाफत और लोगों का रवैया भी देखने के लिए दिलचस्प है। दुकानदार खुश अखलाक हैं और सयाहों को दोस्ताना माहौल फराहम करते हैं। शहर की सकाफत। ताइफ की सकाफत में मेहमान नवाजी, अखलाक और रवायात नुमायां हैं। शहर में हर तरफ लोग दोस्ताना रवैया इख्तियार करते हैं और सयाहों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। सयाह अक्सर मकामी त्यौहारों और तकरीबात में शरीक होते हैं, जैसे फूलों के त्यौहार, मौसीकी की महाफिल और दस्तकारी की नुमाइशें। ये सरगर्मियां सफ़र को यादगार और दिलचस्प बना देती हैं। रिवायती खाने और मशरूबात। ताइफ के शहर में रिवायती खाने और मशरूबात भी सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं।
यहाँ के मकामी खाने, मसाले और ताज़ा फल सयाहों को मकामी जायके से रोशनास कराते हैं। सयाह अक्सर बाजार में रिवायती खाने और मशरूबात का लुत्फ उठाते हैं और साथ ही मकामी लोगों से बातचीत करके सकाफत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। शाम और रात के मनाजिर। शाम के वक्त ताइफ शहर के मनाजिर और भी दिलकश हो जाते हैं। पहाड़ों की चोटियों से शहर की रोशनी देखकर दिल को सुकून और खुशी मिलती है। रात के वक्त बाजारों की रोशनी और बागात का माहौल सयाहों के लिए नाकाबिल फरामोश तजर्बा फराहम करता है। शहर की खूबसूरती और कुदरती माहौल रात के वक्त मजीद नुमायां हो जाते हैं। लोग अक्सर रात को पहाड़ों और बागात में जाकर आराम करते हैं, शहर की रोशनियों का मुशाहिदा करते हैं और कुदरत के हुसैन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। ताइफ के शहर में कुछ दिन गुजारने के बाद सयाह वापस अपने शहर मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना होते हैं। गाड़ी बस में बैठते ही दिल में शहर के खूबसूरत मनाजिर और कुदरती हसन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। पहाड़ों, वादियों और बागात की खूबसूरती जो रास्ते में बार बार नजर आई दिल को सुकून और रूह को ताजगी देती है। वापसी के रास्ते में लोग अक्सर तस्वीरें देखते हैं और सफ़र के दौरान की यादें ताज़ा करते हैं। बच्चे खिड़की से बाहर देखकर पहाड़ों, नदियों और छोटे गांव की तरफ इशारा करते हैं और वालिदैन उन्हें तफसील से बताते हैं कि हर जगह की अपनी कहानी और अहमियत है। रास्ते में यादगार तजुर्बात। सफ़र के दौरान हर लम्हा यादगार होता है। पहाड़ों की चोटी से नीचे शहर और वादियों का मंजर, दरख्तों और बागात की खूबसूरती, नदियों के किनारे का सुकून और मकामी बाजारों में खरीदारी के लम्हात सब सयाहों के दिल में खुशी के लम्हात छोड़ते हैं। कुछ सयाह रास्ते में रुकते हैं ताकि तस्वीर ले कुदरती मनाजिर से लुत्फ उठाई। ये लम्हे ना सिर्फ यादगार होते हैं बल्कि हर किसी के दिल में ताइफ के हसन और सकाफत के बारे में मोहब्बत पैदा करते हैं। शहर की यादें और तहाइफ। ताइफ के बाजार और बागात में वक्त गुजारने के बाद सयाह अक्सर मकामी तहाइफ और यादगार अशिया खरीदते हैं। ये तहाइफ दोस्तों और ख़ानदान के लिए होते हैं ताकि वो भी ताइफ के हसन और सकाफत से लुत्फ अंदोज हो सके। तहाइफ में शामिल होते हैं खुशबूदार फूल, मकामी मिठाइयाँ और शहद, मसाले और दस्तकारी के सामान, यादगार अशिया जैसे छोटे मुजस्समे तस्वीर। ये तहाइफ ना सिर्फ यादगार होते हैं बल्कि ताइफ के सफ़र की कहानी को हर लम्हे याद दिलाते हैं। कुदरती मनाजिर और रूहानी सुकून। वापसी के रास्ते में पहाड़ों और वादियों के मनाजिर दोबारा नजर आते हैं। नदियों के किनारे सब्ज़ाज़ार और फूलों की खुशबू दिल को खुशी देती है। पहाड़ों की चोटी से देखने पर नीचे की वादियाँ, छोटे गांव और शहर की दूर दूर तक फैली रोशनी दिल को सुकून और रूह को ताजगी बख्शती है। सयाह अक्सर इस मौका पर खामोश होकर कुदरत के हुसैन मनाजिर का मुशाहिदा करते हैं और दिल में ताइफ की यादें महफूज कर लेते हैं। ये लम्हे ना सिर्फ यादगार हैं बल्कि रूहानी सुकून भी देते हैं। सफ़र के इख्तितामी लम्हात। जब ताइफ के सफ़र का इख्तिताम होता है तो हर सयाह के दिल में खुशी और सुकून की आमेज़िश होती है। शहर के कुदरती मनाजिर, तारीखी मकामात, बागात और मकामी ज़िंदगी की झलकें दिल में बस जाती हैं। वापसी के दौरान लोग एक दूसरे से कहानियां शेयर करते हैं, तस्वीरें देखते हैं और तजुर्बात पर बात करते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये सफ़र एक नाकाबिल फरामोश याद बन जाता है जो हमेशा दिल के करीब रहता है।